students. How are you all? I hope you all are fine. Now you all are in standard 2. Okay, and this video is about the subject EVS. Okay, environmental science. तो आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज द बॉडी पार्ट. व्हाट इज दैट? बॉडी पार्ट. ओके, नाउ सी external body parts. Now what do you mean by external body part? What do you mean by external body part? External body parts means जो body parts हमें दिखाई देते हैं. The body parts that we see, that is called external body parts. Okay, external body part, EXTERNAL, external. External means the body part which we will that we can see. Yes, that is called external body part. Now see, we all have same body part. We all have same body parts. हम सभी के body parts same होते हैं. There are some body parts that we can touch and see. They are called external body part. ओके, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की डेफिनेशन है बेटा कि दैट वी कैन द बॉडी पार्ट्स दैट वी कैन टच एंड सी, जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं. द हेड, द फेस, नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फीट आर द मेन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. ओके, मेन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? Number 1 head, number 2 face, number 3 neck, number 4 shoulder, number 5 arms, number 6 legs, number 7 hands, number 8 feet are the main external body parts. See, here is the picture of the body parts. See, this is our head, 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 then face, then shoulder, then arm, then hand and feet. Okay, then leg, neck. Okay, kids, now see external body part. The face, first one, which is that the face has the sense organs of eyes to see, ears to hear, nose to smell and tongue to taste. You all know sense organs. How many sense organs we have? Yes, we have 5 sense organs. Okay, which are they? Eyes, ears, nose, tongue and skin. Okay, तो उसमें से बेटा 5 में से हमारे फेस पर कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? Yes, eyes to see, ears to hear, nose to smell and tongue to taste. Okay, so these 4 sense organs are located in our eyes. Okay, where it located? In our eyes. Then our arms. The arms have hands and the hands have fingers to hold the things. Okay, हमें arms में क्या? Arms means what बेटा? Arms have hands. Okay, and we यूज़ फिंगर्स टू होल्ड द थिंग्स. कोई भी थिंग्स हम पकड़ने के लिए क्या यूज़ करेंगे? फिंगर्स. यस, ओके, फिंगर यूज़ करेंगे. द लेग्स हैव फीट एंड टोज टू हेल्प अस स्टैंड, वॉक एंड रन. यस, लेग्स जैसे हमारे हैंड में फिंगर होती है, वैसे लेग्स में क्या होता है? फीट. यस, ओके, feet. And what they help us? Yes, it help us to stand, walk, run, okay, dance. Legs की help से हम कर पाते हैं ना? Yes. Next, the D point is our neck holds our head and connects it to the rest of our body. Yes. Neck से क्या होता है बेटा? Neck से what is the next? Neck. See, here is the picture of, see, this is neck. Okay, so neck से क्या होता है? neck से हमारा head and body जो कनेक्ट हुआ है, जो जॉइंट हुआ है, वो पार्ट को हम क्या बोलेंगे? neck. NECK, neck. आपकी मम्मा जहाँ पर नेकलेस पहनती है ना नेक में, that is called neck. Okay,
वो हमारे हेड को और दूसरे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट यानी दूसरे बॉडी पार्ट को ज्वाइन करता है, नेक। ओके, नाउ सी, ये हमने देखा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। ये सारे कौन से थे? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट मीन्स व्हाट? द बॉडी पार्ट विच वी कैन सी। ओके, जो पार्ट हम देख भी सकते हैं और जिसे टच कर सकते हैं उसे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट कहते हैं। उसमें हमने जो ये पिक्चर में देखे वो सारे बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में हमें दिखाई देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द इंटरनल बॉडी पार्ट। व्हाट? इंटरनल बॉडी पार्ट। इंटरनल, इन यानी अंदर। यस, हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ओके, अभी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हम देख पाएंगे? नो, बिकॉज दैट इज इनसाइड अवर बॉडी। ओके, सो वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। ओके, जो हम देख नहीं सकते और जिसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट। See, we have many body parts inside our body. We cannot touch them and see them. Yes, जैसे अभी मैंने बताया हमारे बॉडी के इनसाइड भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, बट वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। दे आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स। यस बेटा, दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, ऑर्गन। ऑर्गन्स मीन्स बॉडी पार्ट। ओके, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे ऑर्गन्स भी बोलते हैं। नाउ सी, द मेन इंटरनल ऑर्गन्स आर द ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक। ओके, मेन इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं? 4, ब्रेन, लंग्स, 3, ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक। We also have bones and muscles inside our body. Yes, मेन इंटरनल पहले ऑर्गन कौन से होते हैं? ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक। ओके, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड और भी कौन से होते हैं? बोन्स एंड मसल्स। सी, वेयर इज ब्रेन लोकेटेड? ब्रेन हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होता है? सी, हियर इज अ पिक्चर ऑफ ब्रेन, हियर इज अ लंग्स, that is heart and this is stomach where our food goes. Yes, जहाँ पर हमारा फूड जाता है। ओके, जो हम फूड च्यू करते हैं ना वो कहाँ पर जाता है? यस, स्टमक में। अंडरस्टूड? सो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड अवर हेड, देन लंग्स। सी, वी हैव 2 लंग्स, आप देख सकते हो 2 लंग्स के पिक्चर, 1 हार्ट, ओके, एंड स्टमक। यस, एंड नाउ सी, here is a picture of muscles and bones. Yes, bones means what बेटा? आप अपने हैंड को जोर से टच करोगे तो अंदर एकदम हार्ड पार्ट होता है ना हमारे बॉडी में, एकदम हार्ड पार्ट, उसे बोन्स बोलते हैं। ओके, और बोन्स के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज मसल, फिर उसके ऊपर स्किन कवर होता है हमारी बॉडी में। ओके, हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या होता है बेटा? बोन्स, देन मसल्स। ओके, और मसल फिर किससे कवर होता है? स्किन से। सी, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मसल्स एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ बोन्स। अंडरस्टूड? सी, बोन्स इज अ हार्ड, ओके, बोन्स इज अ हार्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी। यस, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो ये पेज में हमने देखा दैट इज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट एंड इंटरनल बॉडी पार्ट। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट वी कैन सी, यस, वी कैन टच, जो हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, बट इंटरनल बॉडी पार्ट वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच। इंटरनल बॉडी पार्ट्स भी बोलते हैं उसे और इंटरनल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। एंड विच आर दे? ब्रेन, लंग्स एंड स्टमक, ओके, एंड हार्ट। ये जो अपने जो बॉडी पार्ट, इंटरनल बॉडी पार्ट के पिक्चर में हमने देख सकते हैं। फिर और क्या है? मसल्स एंड बोन्स। यस, वी कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। अंडरस्टूड बेटा? नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट पेज. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. What is the next page? That is organs. Yes, organs. What is that? That is organs. What is that? That is, see, organs. Organs means what beta? Internal body. Yes,
ऑर्गेन्स मीन्स व्हाट? इंटरनल बॉडी। यस, अभी हम वन बाय वन इंटरनल ऑर्गेन्स हम डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द ब्रेन। द ब्रेन, यस। नाउ सी, the brain helps us think. It controls all other parts. It is one of the most important internal organ. Let us learn about how it looks and its function. Yes, बेटा brain जो है वो पूरे बॉडी को कमांड देता है। Yes, it controls whole body. ओके, एंड अदर पार्ट्स ऑल्सो। ओके, होल बॉडी पार्ट कंट्रोल किससे होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। यस, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी पार्ट कंट्रोल होती है। और थिंक, आप जो इतनी सारी स्टडी करते हो ना, वो आपको कैसे याद रहता है? यस, विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन। आप ब्रेन के थ्रू इतनी सारी स्टडी याद कर सकते हो। थिंक, सो ब्रेन हेल्प अस टू लर्न एंड थिंक। Okay, now where is the brain located? See, here is the picture of brain. Yes, see, here is the picture of brain. Okay, now अभी आपको लगेगा कि मैम ब्रेन होता कहाँ है हमारी बॉडी में? Okay, so let us see the where is the brain location. See, what is this location? LOCATION, लोकेशन मतलब हमें बॉडी पार्ट में ब्रेन कहाँ पर दिखाई देता है। Understood? See, the brain is inside our head. It is covered by a skull made of many bones. The skull is like a helmet. It protects the brain from getting hurt. Yes, बेटा ब्रेन जो है दैट इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का। तो उसकी केयर करनी, उसकी सेफ्टी के लिए हमारी बॉडी में उसको एक कवर दिया हुआ है। ओके, ब्रेन को एक कवर दिया है, उसे क्या बोलते हैं? स्कल। SKULL, स्कल। ओके, वो बोन का बना होता है। स्कल पूरा किसका बना होता है? बोन्स का। यस, दैट इज़ अ हार्ड पार्ट। ओके, वो हार्ड होता है और उसके अंदर ब्रेन होता है, ताकि हमें कुछ भी अगर हम गिर जाते हैं या हमें कुछ लग जाता है तो हमें पहले वो बोन में लगता है, डायरेक्टली हमारे ब्रेन में नहीं इफेक्ट होती है। सो द स्कल इज सी इट्स लाइक अ हेलमेट। ये स्कल देखने में कैसा है? मीन्स हेलमेट जैसा। कि हम कैसे बाहर, आपके पापा बाहर बाइसिकल पर जाते हैं, मोटर कार, तो हम हेलमेट पहनते हैं ना स्कूटर पे। यस, वाई हम हेलमेट क्यों पहनते हैं भाई? यस, बिकॉज अगर इन केस कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हम गिर जाते हैं तो हमारे ब्रेन में या हमारे हेड में कुछ ना हो, इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। तो वैसे ही ब्रेन की सेफ्टी के लिए गॉड ने हमें स्कल दिया है। ओके, स्कल किसका बना होता है? बोन्स का बना हुआ होता है, हार्ड होता है। ओके, सो द स्कल इज लाइक अ हेलमेट। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग हर्ट। यस, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम गेटिंग हर्ट। ये हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उसके ओके उसका ध्यान रखता है। यस, कि वो हर्ट ना हो जाए, उसे कोई चीज़ लग ना जाए। ओके, सो लुक एंड फील। नाउ सी, ब्रेन कैसे दिखता है और वो कैसा फील होता है? सी, द ब्रेन इज लुक लाइक अ, सी अपने पिक्चर हमने देखा ऊपर, वैसा ब्रेन दिखाई देता है। द ब्रेन इज सॉफ्ट एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स। ओके, वो कैसा होता है? एकदम सॉफ्ट होता है, टच करने में वो कैसा हमें सॉफ्ट होता है और हैज़ मैनी फोल्ड्स। ओके, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जैसे हमने पिक्चर ऊपर देखा। सी दिस, कितने सारे इसमें फोल्ड्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, वैसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। नाउ सी, नाउ फंक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फंक्शंस? फंक्शंस मतलब वो क्या वर्क करता है। ओके, हमारा ब्रेन क्या क्या वर्क करता है हमारे बॉडी के लिए, वो हम इस फंक्शंस के थ्रू सीखेंगे। अंडरस्टूड बेटा? सी, द ब्रेन कंट्रोल्स अवर बॉडी। इट सेंड्स मैसेजेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टेल्स देम व्हाट टू डू। ओके, ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अंडरस्टूड? और वो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट को मैसेज करता है कि हमें क्या करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मम्मा ने हॉट टी टेबल पर रखी है, ओके, हॉट टी टेबल पर रखी है, अब आप डायरेक्टली उसको जाके सीधा टच करोगे? नो, आप टच नहीं करोगे। तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये हॉट टी को मुझे टच नहीं करना चाहिए? बिकॉज योर ब्रेन्स कमांड्स यू, यस, आपका ब्रेन आपके हैंड को कमांड देता है कि डोंट टच, इट इज़ हॉट, आप इसको टच मत करना, ये गर्म है, ओके। तो ये कौन कमांड देता है? ब्रेन देता है हमारे हैंड को। वैसे ही सारे बॉडी पार्ट्स को कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है, यस, ओके। So, see, for example, when we want to pick up a pin, okay, इसमें देखिए हमें कोई पिन चाहिए। Our brain sends a signal to our hand and ask it to pick the pin. अभी मुझे कोई पिन उठानी है तो मेरे हैंड को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये चाहिए? मेरा ब्रेन जो है वो मेरे हैंड को कमांड देता है कि गो एंड पिक द पिन, ओके। तो ब्रेन जो है वो वैसे हैंड को, लेग्स को, पूरी बॉडी को वो कमांड देता है। नाउ सी द फंक्शंस, ये देखो ABCD 4 पॉइंट्स है बेटा, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इट हेल्प अस थिंक, जैसे मैंने आपको बताया, इट हेल्प अस थिंक, ओके। ये हमें ब्रेन क्या हेल्प करता है? हमें सोचने में हेल्प करता है। सेकेंड, इट हेल्प अस टू लर्न एंड रिमेंबर द थिंग्स, यस, ब्रेन हमें किस में हेल्प करता है? टू लर्न, ओके। आपको स्टडी में लर्न करना होता है ना, और रिमेंबर आपको याद भी रखना होता है। तो ये दोनों थिंग्स आप किसकी हेल्प से करते हो? विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। इट हेल्प अस ड्रीम, यस, हम जब रात को सोते हैं तभी स्वीट ड्रीम आती है ना, यस, तो वो किससे आती है? विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेन, यस। जो चीज़ें हमें ज़्यादा सोचते हैं दिन में, फिर रात को वो हमारे ड्रीम में आती है, तो वो कैसे आती है? विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेन। It helps us perform activities such as running, writing and dancing. Yes, ये हमें हेल्प करता है एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी में? रनिंग, डांसिंग, राइटिंग, ओके। हम जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। अंडरस्टूड बेटा? व्हाट इज ब्रेन? तो आपको ये याद रखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट हमने ये पेज में क्या सीखा कि ब्रेन इज अ इंटरनल ऑर्गन, ओके। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इनसाइड अवर हेड, हमारे हेड के अंदर। और ब्रेन का कवरिंग क्या है? तभी आपको क्या याद रखना है? स्कल, SKULL, स्कल। स्कल किससे बना होता है? बोन्स से बना होता है, ओके। लुक एंड फील कैसा दिखाई देता है? ये मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ओके। ऐसे पिक्चर में आप देख सकते हो कि ब्रेन हमें ऐसे दिखाई देता है। और नेक्स्ट, वो हमें टच करने में कैसा होता है? ब्रेन सॉफ्ट होता है एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स। नाउ इट्स फंक्शन, ओके। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ ब्रेन। It helps us to think, it helps us to learn and remember the things, it helps us to dream and it helps us to doing different activities, okay। तो इतना आपको ब्रेन के बारे में बेटा लर्न हो जाना चाहिए, okay। Now let's move to the next internal organ, okay, next page, that is the heart, yes। ब्रेन के बाद कौन सा आता है? The heart, okay, HEART, heart, yes। The heart is a very important organ in our body, yes। बेटा हार्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। हम जो ब्रीथिंग करते हैं, ओके, तो वो हार्ट तक जाती है ना, yes। It pumps blood to all internal and external body parts so that they can do their work, okay। हार्ट का क्या काम है? जैसे ब्रेन कैस क्या करता था? यस, ब्रेन लर्न करने में हेल्प करता है, वैसे इट पम्प्स द ब्लड होता है ना, रेड कलर का ब्लड हमारी बॉडी में, तो वो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी तक ब्लड को पंपिंग करने का वर्क करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी पार्ट को, ओके। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। सी वेयर इज हार्ट लोकेशन? सी दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्ट, ओके। हमारे चेस्ट के अंदर, दिस इज चेस्ट, हमारे चेस्ट के इनसाइड हार्ट होता है। सी द हार्ट इज स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ अवर चेस्ट, यस। हमारे चेस्ट के बेटा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हार्ट होता है।
If you put your hand on your chest, you can feel your heart is beating. Yes, आप अपने हार्ट देखिए, लेफ्ट साइड पे आप हैंड रखोगे तो आपको देखो हार्ट बीट्स पता चलती है ना, धक 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 ऐसा होता है ना. यस, दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट. व्हाट इज दैट कॉल्ड? हार्ट बीट्स. यस, तो हम फील कर पाते हैं, ओके, कि हमारी हार्ट बीट्स को हम फील कर पाते हैं. नाउ लुक एंड फील. द हार्ट इज सॉफ्ट. ब्रेन के जैसे हार्ट भी सॉफ्ट ही होता है. इट इज द साइज ऑफ अवर फिस्ट एंड इज रेड इन कलर. ओके, उसकी साइज क्या होती है? फिस्ट जितनी. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द हार्ट? दैट इज रेड. नाउ इट्स फंक्शन. ओके, ये क्या वर्क करता है? सी, द हार्ट पंप्स ब्लड. इट सेंड्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, द हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप्स ब्लड, पंपिंग करता है ब्लड को और पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है. When we exercise or play, our heart pumps blood faster. आप जब भी प्लेइंग करने जाते हो तभी आपकी हार्ट बीट्स कैसी हो जाती है? आपने कभी देखा है? आज आप प्लेइंग करो तभी आप चेक करना, आपकी हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो जाएगी, धक 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 फास्ट हो जाएगा. ओके, तो वो क्यों फास्ट हो जाता है? बिकॉज इट gives our muscles more blood so that they can work. Okay, because it gives our muscles more blood. तभी क्या होता है? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारे मसल्स को वो ज़्यादा ब्लड पंपिंग करता है. ओके, तो इसीलिए वो वर्क ज़्यादा कर पाए, इसीलिए हमें फास्ट हमारी बीट्स दिखाई देती है. अंडरस्टूड बेटा? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हार्ट. हार्ट का मेन फंक्शन वही है बेटा कि इट पंप्स द ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इंटरनल ऑर्गन हमने 2 देखे, ब्रेन एंड हार्ट. द नेक्स्ट इज लंग्स. ओके, नेक्स्ट इज लंग्स. नाउ सी, we all need air to live. See, this is the picture of lungs. See, we have 2 lungs. Okay, we have 2 lungs. Okay, now see, we all need air to live. The air we breathe goes into the lungs. The lungs supply it to all our body parts which help them to do their work. Okay, बेटा इसका क्या वर्क है बेटा? We all need एयर टू लिव. हम जो एयर ब्रीथिंग में लेते हैं वो कहाँ पर जाती है? हमारे लंग्स में. और वो ब्रीथिंग हमें कौन सा? ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग करते हैं ना. यस, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. तो वो एयर हम ब्रीथिंग करते हैं, वो पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है. यस, लंग्स आर इन अवर चेस्ट एंड वी ऑल हैव 2 लंग्स. यस, हमारे चेस्ट के इन साइड में लंग्स होते हैं. वी हैव 2 लंग्स. ओके, see, this is the picture of proper, see, lungs. Understood? This is the picture of lungs. See, look and feel. They are soft, spongy and pink in color. बेटा इंटरनल ऑर्गन सॉफ्ट ही होते हैं. लंग्स इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट, स्पॉन्जी, ओके, एंड पिंक इन कलर. नाउ फंक्शंस. लंग्स के कितने फंक्शंस है? A, B and C. There are 3 functions. We breathe in air through our nose and it reaches our lungs. Okay, we breathe in air through our lungs. Okay, हम एयर जो ब्रीथ करते हैं लंग्स से, our नोज से, तो हम वो कहाँ तक? नोज के थ्रू कहाँ पहुँचता है? हमारे लंग्स तक. The lungs take in oxygen from the air. ओके, वो ब्रीथिंग में एयर में क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है जो हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं और वो लंग्स तक जाके एंड सप्लाइज इट अराउंड अवर बॉडी. ऑक्सीजन गोज इट ऑक्सीजन गैस इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, पूरे बॉडी पार्ट को वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है. कौन? लंग्स. ओके, और दैट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी. The lungs remove carbon dioxide from our body through the nose and carbon dioxide is not useful for our body. Yes, बेटा हम ब्रीथिंग करते हैं ना तभी ऑक्सीजन एयर में से हम ब्रीथिंग करेंगे और हम ब्रीथ आउट करते हैं. जब भी हम सांस छोड़ते हैं नोज थ्रू ब्रीथ आउट करते हैं तभी बाहर क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, वो भी 1 टाइप ऑफ गैस है. ऑक्सीजन भी गैस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है. अंडरस्टूड? यूज़फुल नहीं है, जो हम उसे बॉडी में से रिमूव कर देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं.
अंडरस्टूड। आपने अभी कोविड-19 की पोजीशन में देखा था ना, कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने सारे लोग बीमार हो गए थे कोरोना में। यस, क्योंकि उनको पूरा ऑक्सीजन एयर के थ्रू नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए उसके लंग्स वीक हो जाते थे। कोरोना में बेटा सभी के लंग्स वीक हो जाते थे और फिर वो उनकी डेथ हो जाती थी। इसीलिए हमें अच्छे से फ्रेश एयर ब्रीथिंग करनी चाहिए ताकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिले। ओके, फ्रेश एयर में से। नाउ सी, ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अभी मैंने बताया, इसमें देखिए हम ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी बॉडी के लिए हमें नहीं चाहिए वो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रीथ आउट कर देते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। ओके, 3 फंक्शंस लंग्स के हमने देखे कि वो एयर हम ब्रीथिंग में एयर नोज के थ्रू लंग्स तक पहुंचाते हैं, लंग्स पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। वो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस हम ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, now let's move to the next page and that is last page for this video beta. The next organ is the stomach. Okay, next and last organ. Okay, internal organ stomach. Yes, we cannot see the stomach. Okay, अंदर होता है बॉडी पार्ट के अंदर, that is called internal organ. Okay, we know that we need energy to do different activities. हमें अलग अलग एक्टिविटी, रनिंग, डांसिंग, राइटिंग, रीडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यस, बट हाउ वी गेट इट दिस एनर्जी। ओके, लेकिन ये हमें एनर्जी मिलेगी कहाँ से। यस, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। आवर स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट so that our body can use the energy from it. Yes, ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड में से, जो हम फूड ईटिंग करते हैं उसमें से। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि डोंट ईट जंक फूड, ईट हेल्दी फूड, ताकि हमें फुल एनर्जी मिल जाए उसमें से। ओके, देन वो जो हम फूड ईट करते हैं वो कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक में। यस, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड। स्टमक हेल्प अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। नाउ लोकेशन, अभी लोकेशन मीन्स व्हाट, कहाँ पे दिखाई देता है स्टमक हमारी बॉडी में। इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द बेली। यस, सी, स्टमक इज लोकेटेड, सी दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टमक, हाँ, अपर लेफ्ट साइड ऑफ बेली। ओके, इफ यू प्रेस अबाउ योर बेली बटन, सी दिस इज कॉल्ड बेली बटन, उसके ऊपर वाले अपर पार्ट में हमें स्टमक दिखाई देता है। यू कैन फील योर स्टमक। आपका बोलते हो ना मम्मा बहुत भूख लगी, फिर आप कहाँ पे हैंड रखते हो, यस, बेली बटन के ऊपर। ओके, तो दैट इज जो बेली बटन का जो अपर पार्ट है वहाँ पर हमारा स्टमक होता है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा। ओके, लुक एंड फील, सी वो कैसे शेप कैसा होता है, ऐसा होता है स्टमक का हमारी बॉडी के अंदर। ओके, एंड कैसे इट लुक्स लाइक अ सॉफ्ट बैग इन द शेप ऑफ अ लेटर जे। यस, जे लेटर होता है ना, जे फॉर जोकर। यस, जे लेटर जैसा हमें दिखाई देता है और कैसा होता है, टचिंग करने में कैसा फील करता है, सॉफ्ट बैग। ओके, सॉफ्ट बैग होता है। नाउ फंक्शंस, यस, वो हमारे लिए क्या वर्क करता है, वो तो भाई ABCD 4 फंक्शंस है उसके। ओके, फर्स्ट ए, वी टेक इन फूड फ्रॉम आवर माउथ एंड क्रश इट विथ आवर टीथ इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यस बेटा, फर्स्ट प्रोसीजर जब आप ईट करते हो फूड, तभी क्या होती है, टीथ और टंग की हेल्प से आप पूरे फूड को अच्छे से च्यू करते हो। ओके, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे ब्रेक करते हैं हम। ओके, देन हम उसे च्यू करते हैं इन स्मॉल पार्ट्स, फिर टीथ से। दिस क्रश्ड फूड गोज डाउन फ्रॉम आवर माउथ थ्रू आवर थ्रोट टू द स्टमक। फिर वो फूड हमारा थ्रोट के थ्रू कहाँ पर जाता है, स्टमक में जाता है। ओके, क्रश फूड, जैसे मिक्सी में हम क्रश करते हैं ना फूड को, वैसे ही हम माउथ में क्रश कर देते हैं फूड को। अवर स्टमक स्टोर्स दिस फूड लाइक अ बैग। फिर जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट बैग जैसा होता है, तो पूरा फूड वो एक बैग जैसा जो स्टमक है जे शेप का, उसके अंदर जाता है, लाइक अ मिक्सर। ओके, इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फिर स्टमक में जाके फिर से वो स्मॉलर पार्ट्स में फूड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, फिर हम जो वाटर भी ड्रिंक करते हैं ना, ओके, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। द स्टमक डाइजेस्ट द फूड बाय एडिंग जूसेस। यस,
फिर वो स्टमक जो हमने फूड ईट किया है उसको डाइजेस्ट करता है, ओके, उसका पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है बाय एडिंग जूसेस, ओके, दैट हेल्प टर्न द फूड इनटू लिक्विड फॉर्म। फिर वो वाटर और जूसेस के साथ मिक्स होके पूरा फूड का कौन से फॉर्म में बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, okay. From this liquid our body gets energy and this process is called digestion. Yes, this is called digestion, okay. फिर वो लिक्विड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी के थ्रू हमें मिलता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन, ओके बेटा। ये स्टमक में हमने देखा कि हमारा फूड हम जो च्यू करते हैं वो कहाँ से जाता है, स्टमक में जाके मिक्सी के जैसे ग्राइंड होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और फिर वो हमारा फूड वो डाइजेस्ट करता है, ओके। फिर उसमें से हम पूरे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी पास करता है, यस। सो दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ द स्टमक, ओके। सो ये हमने देखा स्टमक के बारे में। तो बेटा हमने इंटरनल ऑर्गन आज डिटेल में पढ़े, कौन से, स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन, ओके। 4 इंटरनल ऑर्गन्स आज हमने स्टडी किए हैं, ओके बेटा। सो यू हैव टू सी दिस वीडियो, आप वीडियो देखकर अच्छे से पिक्चर्स देख लेना अपने हमारे बॉडी पार्ट्स के, ओके, एंड ट्राई टू रीड इट, ओके। पिक्चर्स अच्छे से देखना, फिर मैंने जो जो बताया है आपको जो वीडियो में वो आपको अच्छे से समझना, ओके, एंड ट्राई टू रीड द सेंटेंसेस, ट्राई करना बेटा रीडिंग के लिए, ओके बेटा। तो आज हमारा वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद द इंटरनल ऑर्गन्स, ओके बेटा। गुड बाय।